Hello students, in this video we will continue further with mathematical tools and we will solve few numericals. हम लोग कुछ numericals जो है उन numericals को हम लोग solve करेंगे. Okay, so we'll go on to question number 9. It is given to you that two particles A and B are moving in XY plane. Now when I say XY plane, ये आपका XY plane होता है X, Y. So ये टू डायमेंशनल प्लेन है, ये दो पार्टिकल्स कहीं पे भी मूव कर सकते हैं इस एक्स वाई प्लेन में. ओके, नाउ देयर पोजीशंस वेरी विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप. सो एक्स ए इज गिवन टू यू एज 3t एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ a वेरीज विद टाइम एज t. सो देखो आपका टाइम जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, a का x कोऑर्डिनेट भी चेंज होता जाएगा, a का y कोऑर्डिनेट भी चेंज होता जाएगा. एंड सिमिलरली x coordinate of B is given to you as 6 and y coordinate of B is given to you as 2 plus 3t square. Now you can see that x coordinate of B में time आ ही नहीं रहा, ये constant number है. So this is a constant. तो x coordinate of B is not changing. This is constant. बट y कोऑर्डिनेट ऑफ b इज चेंजिंग, क्योंकि ये इसमें टाइम आ रहा है ना, आपका टाइम जैसे चेंज होता जाएगा वैसे y कोऑर्डिनेट ऑफ b विल चेंज. ओके, नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स एट t इक्वल टू 1. आपको पूछा गया है t इक्वल टू 1 व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स. अब डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. सो हमें पता है ना डिस्टेंस फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर plus y1 minus y2 the whole square, where x1 and y1 are coordinates of the first point, x2 and y2 are the coordinates of second point. So this becomes equal to xa minus xb the whole square plus ya minus yb the whole square. अब आपको ये फाइंड आउट करना है डिस्टेंस एट t इक्वल टू 1. सो एट t इक्वल टू 1 हम लोग पहले तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करता है. सो इफ यू पुट t एज 1, xa विल बी इक्वल टू 3 इंटू 1 दैट इज 3. ya विल बी इक्वल टू t के जगह पे 1 पुट करो. xb तो आपका हमेशा 6 ही होगा. आपका जो yb होगा वो कितना होगा, आप t के जगह पे 1 पुट करोगे तो 3 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज 3 प्लस 2 5. सो अब ये वैल्यूज पुट करता है. xa minus xb, 3 minus 6 that is minus 3 the whole square. ya minus yb, ya is 1, yb is 5. 1 minus 5 that is minus 4 the whole square. So 3 square is 9, 4 square is 16. So square root of 25 आपको आ जाएगा 5. So your answer would be 5. The distance between the two particles is 5. ठीक है. Now we'll go on to question number 10th. Question number 10th ये है a particular straight line passes through origin. आपको ये दिया हुआ है straight line is passing through origin. So straight line passing through origin now straight line passing through origin, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, y इज नहीं, इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स. करेक्ट, दिस इज द स्ट्रेट लाइन दैट विल पास थ्रू ओरिजिन. उसमें इंटरसेप्ट टर्म नहीं होता. ओके, एंड हुज अब्सिसा इज डबल दैट ऑफ ऑर्डिनेट. अच्छा, it is given to you that a point whose abscissa is x coordinate. ये जो इसका मीनिंग होता है x कोऑर्डिनेट. ओके, सो लेट्स से x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज x नॉट एंड अ पॉइंट हुज एब्सिसा इज डबल ऑफ ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट होता है y कोऑर्डिनेट. That is y naught. Okay, so it is given to you that abscissa, so that is x coordinate is double of ordinate. So x naught is equal to 2 times y naught.
This is what is given to you. Okay, so y naught is equal to x naught by 2. Now if you compare this equation and this equation, y is same as y naught, x is same as x naught, m is equal to 1 by 2. आपका राइट आप इसको ऐसे देख सकते हो ना, y naught 1 by 2 into x naught. So therefore y is equal to m into x. आप कंपेयर करोगे तो you will get y as 1 by 2 into x. This is what you would get. Okay. अब 11th क्वेश्चन करता है. 11th में आपको दिया हुआ है the side of the square is increasing at the rate of 0.2 centimeters per second. मान लो ये स्क्वायर है. Let's say the length of the side is L. So इन्होंने ये कहा है the length of the side is increasing. So dl by dt. आपको याद है मैंने आपको previous lecture में भी कहा था whenever rate is given to you मतलब you will take derivative with respect to time. This is equal to 0.2 centimeters per second. आपको rate of increase of perimeter चाहिए. Now perimeter for a square P, this is equal to 4 times L. This is your perimeter. तो आपको चाहिए rate of increase of P. So d by dt of perimeter P. This is d by dt of P is 4 times L. Perimeter can be written as, हमें पता है ना perimeter is 4 times L. अब 4 constant है. So d by dt of L or dl by dt, that is what we know, 0.2. So 4 into 0.2, this will be equal to 0.8 centimeters per second. Okay. So increase in the perimeter or the rate of increase of perimeter is equal to 0.8 centimeters per second. ठीक है. अच्छा, इसके बाद we will go on to next question, that is question number 12. Frequency f of the pendulum depends on its length and acceleration due to gravity according to the following equation. So frequency is given to you as 1 by 2 pi square root of g by L. Okay. Now graph between which of the following quantities is a straight line. कौन से दो टर्म्स के बीच में f और L, आपको पता है कि f एंड L इन दो टर्म्स को आपको रिलेट करना है. तो आप कौन से दो आप L का एग्जैक्टली कौन सा फंक्शन कंसिडर करोगे so that the graph between f and that function will be a straight line. If you look at the options, f on the ordinate and L on the abscissa. So इन्होंने वही पूछा हुआ है, f and L के बीच में आप ग्राफ बनाओगे, f and square root of L के बीच में आप ग्राफ बनाओगे, तो it should be a straight line. So अब ये हम लोग कैसे करेंगे पता है? You know this. f is equal to, इसको सेपरेट कर देते तो you have square root of g upon 2 pi into 1 by root L. ठीक है, इसको L को हमने अलग कर दिया. अच्छा, नाउ ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन तब रिप्रेजेंट करेगा जब ये इक्वेशन जो है वो y इक्वल टू mx के फॉर्म में होगा. यहां पे आगे प्लस कुछ नहीं है तो यहां पे भी मैं प्लस कुछ नहीं दिख रहा. ओके, सो इन दिस केस दिस इक्वेशन अच्छा will represent a straight line when this is similar to this equation. Now in this case you can see that ये जो y है this will be represented by f. y मतलब आपका ordinate होता है, y coordinate is called as ordinate. So your ordinate is frequency and x is equal to this term. Okay, so and x is equal to 1 by root L. So 1 by root L is your abscissa. Okay, so basically आपको जो ग्राफ है वो ग्राफ इनके बीच में प्लॉट करना है. 1 by root L on x axis
एंड फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस। जब आप ये ऐसे प्लॉट करोगे तब जाके दिस ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ये जो ग्राफ है इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके। इन्होंने ये ऑप्शन आपको दिया हुआ ही नहीं है, तो इसमें और एक ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं। लेट स्क्वायर बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स को, अगर जो इस इक्वेशन में दोनों साइड्स को स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको? एफ स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू 1 बाय एल। ओके, सो नाउ इन दिस केस if you compare this with the equation y equal to m into x, तो 1 by l represents x, तो ये 1 by l होगा, and y represents f square। तो आप अगर जो f square और 1 by l के बीच का भी ग्राफ प्लॉट करोगे तो it will also be a straight line। इसका जो स्लोप होगा, ये स्लोप कितना होगा? स्लोप would be equal to this number g upon 4 pi square। Similarly, even this will be a straight line, okay, f and 1 by root l के बीच का ग्राफ, okay, and यहां पे जो आपका स्लोप होगा, the slope would be equal to this term square root of g by 2 pi। So I hope you have understood this। ये जो समय ये आपको समझ में आया है, okay। Okay, now let's try to understand geometric progression। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा हुआ है ना। Now geometric progression क्या होता है? Now if you see over here, okay, मैं एक ना आपको सीरीज देता हूं 2, 4, 8, 16, 32, 64। आपको क्या पैटर्न दिखाई दे रही? If you see over here, the pattern that you can see is, अच्छा, एनी नंबर डिवाइडेड बाय प्रीवियस नंबर, रेशियो हमेशा 2 आएगा। 4 by 2 is 2, 8 by 4 is 2, 16 by 8 is 2, 32 by 16 is 2। सो बेसिकली इन सारे नंबर्स के बीच में देयर इज सम कॉमन रेशियो, देयर इज अ कॉमन रेशियो। ओके, नाउ इफ यू हैव n टर्म्स, ऐसे n टर्म्स है, सो n टर्म्स को दिखाया ऐसे जाता है a इंटू आर, a इंटू आर स्क्वायर, a इंटू आर क्यूब। सो इफ यू सी ओवर हियर, इफ यू टेक द रेशियो, आप अगर जो रेशियो देना स्टार्ट करोगे ए आर अपॉन ए, तो ये आर आएगा, ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर, ये भी आर आएगा, ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर, ये भी आर आएगा। सो आपको कॉमन रेशियो यू विल गेट इट एज आर। Okay, so R is basically a common ratio। Common ratio क्या है? It is basically the ratio of two consecutive terms। Okay, now there are two possibilities। ये जो आपका रेशियो है, this ratio can either be greater than 1 or this ratio can be less than 1। Now if this ratio is greater than 1, तो क्या होता है कि ये जो सीरीज है ना, इसमें नंबर्स बढ़ते ही जाता है, numbers keep on increasing, numbers keep on increasing। जैसे ये वाली सीरीज है, यहां पे आपका कॉमन रेशियो जो है दैट इज 2। ओके, सो नंबर्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। ऐसे केस को, ऐसे सीरीज को कहा जाता है डाइवर्जेंट सीरीज, यहां पे नंबर इंक्रीज होते जाता है। ओके, एंड इफ आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है 1, 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8, 1 by 16, 1 by 32। सो आपको क्या दिख रहा है कि आप हर नंबर का हाफ करते जा रहे हो। 1 का हाफ हाफ है, हाफ का हाफ 1 by 4, इसका हाफ 1 by 8, इसका हाफ 1 by 16। तो आपका जो R है दैट इज 1 by 2। यहां पे आपका कॉमन रेशियो इट इज लेस देन 1। ओके, ना आप जैसे जैसे आगे जाओगे नंबर्स और छोटे होते जाएंगे ना। 1 by 32 इज अ वेरी स्मॉल नंबर, 1 by 64 ये और छोटा नंबर है, 1 by 128 और भी छोटा नंबर है। सो ऐसे सीरीज को हम लोग कहते हैं नंबर्स कीप ऑन डिक्रीजिंग, एंड ओके,
ऐसे सीरीज को कहा जाता है कन्वर्जेंट सीरीज. So you have two series, one is a divergent series, second one is a convergent series. अच्छा, अब मान लो कि if there are infinite terms, okay, so infinite terms अगर जो होंगे तो यहां पे ना terms progressively छोटे होते जाएंगे. बट अगर जो if you have this series, जैसे ये मैं एग्जांपल लिख देता हूं 2, 4, 8, 16, 32, यहां पे प्रोग्रेसिवली टर्म्स बढ़ते ही जा रहे हैं ना. तो आप अगर जो इन्फिनाइटली लॉन्ग सीरीज है, मतलब जिसके अंदर इन्फिनाइट टर्म्स है, तो क्या होगा उस केस में, जो फाइनल टर्म्स होंगे वो भी बहुत बड़े होंगे. दे विल बी एज बिग एज इंफिनिटी, राइट. समझ में आ रहा है ये आपको? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, दैट व्हेन यू हैव अ डाइवर्जेंट सीरीज, ओके, एंड इफ यू हैव इन्फिनाइट टर्म्स, तो टर्म्स कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड योर फाइनल टर्म वुड बी इंफिनिटी. And when you have a convergent series के अंदर terms keep on decreasing, and if you have infinite terms, आपका final term 0 होगा. Okay. Now divergent series जो होती है, divergent series, इसका अगर जो आपको sum निकालना है, तो आप sum कैसे निकालते हो पता है? Sum of n terms is equal to a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. ओके, ठीक है. ना यहां पे व्हेन यू हैव इनफाइनाइट टर्म्स, तो क्या होता है कि ये जो सीरीज की साइज बढ़ते ही जाती है, तो आप इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करते जाओगे तो आपको फाइनल आंसर इन्फिनिटी आएगा. सो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स वुड बी इन्फिनिटी. व्हेन यू हैव अ कन्वर्जेंट सीरीज जहां पे कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, यहां पे सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स इज गिवन बाय a अपॉन 1 माइनस r. यहां पे व्हाट डज a मीन? a रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, एंड r रिप्रेजेंट्स द कॉमन रेशियो. ठीक है. So A represents the first term of the series, R represents the common ratio. Okay. Now हम लोग अगर जो ये आपकी सीरीज है, let me write it over here, 1, 1/2, 1/4, okay, till infinity. तो इसका टर्म कितना होगा? सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स. आपको ऐसा लग रहा होगा ना, इन्फिनाइट टर्म्स को ऐड करें तो आंसर इन्फिनिटी आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता. When you have a convergent series, आपको ना फाइनली वैल्यू आती है, यू गेट अ लिमिटेड वैल्यू, एक फाइनाइट वैल्यू. a इज योर फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज 1. 1 माइनस कॉमन रेशियो इज बेसिकली द रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स. तो यहां पे आप ऐसा कर सकते हो, 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, ये दिस विल बिकम 2/4, दैट इज 1/2. सो ये जो आपका कॉमन रेशियो है, दिस कॉमन रेशियो इज 1/2. So this will become 2. आपका आंसर 2 आएगा. So when you have a convergent series and even if you add infinite terms को add करने पे भी आपको एक finite number मिलता है. You get a finite number. So please remember this. This is the formula, sum of infinite GP, geometric progression, okay, when common ratio is less than 1. कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो आप कुछ नहीं कर सकते. ये आपका जनरल फॉर्मूला. ये सारे टाइप के वेदर योर r इज ग्रेटर देन 1 और r इज लेस देन 1, सबके लिए ये एप्लीकेबल है. दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस, ऑल GP सीरीज. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. अब मान लो कि और एक विल गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13 नाउ. वन प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64. ओके, ये आपकी सीरीज है. नाउ इस सीरीज के अंदर
अगर जो आप कॉमन रेशियो निकालोगे तो कॉमन रेशियो पहले तो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो, तो इट इज 1/4 डिवाइडेड बाय 1, सो दैट इज 1/4. तो आपका कॉमन रेशियो इज लेस देन 1. अब ये इन्फिनाइट टर्म्स है एंड इन सारे टर्म्स को आप ऐड कर रहे हो. आप जब इन सारे टर्म्स को ऐड करते हो तो आपका एस इन्फिनिटी कितना होता है? a/1 - r. So a is 1 minus 1/4. So 4 minus 1 3. आपका आंसर जो आएगा that will be 4/3. I hope you have understood this. इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है. ठीक है? Okay. There is one more new thing that you should remember is how to find out average. Now average आप बोलोगे कि सर ये तो सिंपल है, अगर जो 5 टर्म्स है मान लो 2 3 4 एंड 3, अगर जो आपको इनका एवरेज निकालना है तो आप क्या करोगे? 2 + 3 + 4 + 4 + 3 एंड बिकॉज देयर आर 5 टर्म्स आप 5 से डिवाइड करोगे. So 4 3s are 7 + 3 10 + 6 16, 16/5 3.2. ये आपका एवरेज आ जाएगा. ओके. ना यहां पे ना देयर वेर फाइनाइट नंबर्स. तो फाइनाइट नंबर्स जब है मतलब 5 ही नंबर्स है ना, तो 5 नंबर्स का एवरेज आप डायरेक्टली निकाल सकते हो. अच्छा, इनको ना मैं 5 अलग नंबर्स है ना प्रॉपर 2 3 4 4 3, सो इनको मैं डिस्क्रीट नंबर्स कहता हूं. ओके. ना इन डिस्क्रीट नंबर्स के लिए एवरेज निकालना बहुत ही सिंपल होता है. सारे टर्म्स को ऐड करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. बट लेट्स से इफ यू हैव समथिंग ऑफ दिस टाइप, मान लो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन इज इक्वल टू टी. हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में किया था ना y = t. तो आपको एवरेज निकालना है. एवरेज बिटवीन, यू हैव टू फाइंड आउट एवरेज between 0 and 1, 0 t 1. So time varies between 1 and 0. अब यहां पे आपके पास कितने टर्म्स होंगे? अब आपको x की वैल्यू t पता है ना, तो 0.1 सेकेंड्स पे मान लो हमारे पास टाइम तो कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहता है. टाइम कैन हैव एनी वैल्यू, राइट? सो व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0.001, x की वैल्यू कितनी होगी? आई नो x इज इक्वल टू t, ये रिलेशनशिप है. सो इफ t इज इक्वल टू 0.001 देन x विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0.001. इफ t इज इक्वल टू 0.002 देन x विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0.002. तो ऐसे आप समझ रहे हो कितने सारे टर्म्स हम लोग लिख सकते हैं. मतलब बिटवीन 0 and 1 आप लोगों ने ये पढ़ाई है ना. लेट्स से ये मान लो लाइन है एंड लाइन पे मैं आपको 2 पॉइंट्स मार्क करके देता हूं, t = 0 एंड t = 1. सो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन अ लाइन? ये इसमें बीच में कितने पॉइंट्स है? यू विल हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. राइट? सो व्हेन यू हैव इनफिनाइट पॉइंट्स, ओके, आप इन्फिनाइट पॉइंट्स के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला. तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि देयर आर इन्फिनाइट पॉइंट्स. देखो कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, ये लाइन कंटिन्यूअस है. सो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है. एंड फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं ना, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए आप एवरेज कैसे निकालोगे? तो एवरेज निकालने का तरीका ये होता है, किसी भी फंक्शन का अगर जो आपको एवरेज निकालना है, मान लो f(x), इसका अगर जो आपको एवरेज निकालना है तो आप एवरेज के लिए ऊपर बार पुट करोगे, या फिर आप इसको ऐसे भी लिखोगे f(x) एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल, लेट्स से टाइम. इस केस में टाइम आपका वेरिएबल है, डिवाइडेड बाय सिंपली टाइम dt. एंड टाइम जो है वो 2 लिमिट्स के बीच में वेरी करता है, t1 से t2, t1 to t2.
ठीक है. सो हाउ डू यू फाइंड आउट द एवरेज? प्लीज रिमेंबर दिस. किसी भी फंक्शन का अगर जो आपको एवरेज फाइंड आउट करना हो तो एवरेज फाइंड आउट करने का तरीका ये है. This is the formula that you will use. Okay. Please remember this is how you find out the average of any function. किसी भी function का जो average है वो ऐसे ही find out किया जाएगा. Okay. So let me do an example with you. Let's say आपको ये पूछा गया है, a function is given to you, v is equal to 2t plus 3. You can see that velocity is a function of time. जैसे जैसे आपका टाइम चेंज होता जाएगा, ये जो v है वेलोसिटी ये चेंज होती जाएगी. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द टाइम इंटरवल 0 and 1. So t varies between 0 and 1. So इस टाइम इंटरवल के दौरान आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. यू हैव टू फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी. ठीक है. अब हमने वो देखा था ना फॉर्मूला, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ डी टी. ओके, एफ ऑफ टी होगा बेसिकली, एफ ऑफ एक्स नहीं, एफ ऑफ टी. क्योंकि फंक्शन में पीछे भी एक मिनट. अच्छा, आइडियली एफ ऑफ एक्स नहीं है यहां पे, बिकॉज हम लोग टी हमारा वेरिएबल मान रहे हैं, तो इट इज एफ ऑफ टी. अगर जो इफ द फंक्शन डिपेंड्स अपॉन एक्स तो डी टी के जगह पे आप डी एक्स लिखोगे बस. ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अब ये हम लोग कैसे करेंगे? So this is your average value of the function ना, f of t ये average value है. तो आपको velocity की average value चाहिए, तो ये same formula हम लोग use करेंगे. v average is equal to integral of f of t के जगह पे I'll put v, it depends upon time, so dt divided by integral of dt. टाइम कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से 1 एंड 0 से 1. ओके, अब इसको सॉल्व करता है. वेलोसिटी इज गिवन टू यू एज 2t plus 3 into dt 0 to 1. सो यू कैन सी दैट ये दो इंटीग्रल्स अलग है, इनको कंबाइन मत करो. यू हैव टू डिफरेंट इंटीग्रल्स. ओके, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते v dt by dt. You cannot write it this way, ये रॉन्ग हो जाएगा. दो सेपरेट इंटीग्रल्स है, आपको इनको दो सेपरेट इंटीग्रल्स को अलग से ही सॉल्व करना है. सो v के जगह पे हमने 2t plus 3 पुट किया डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dt. अब इंटीग्रेशन के अंदर प्लस या माइनस रूल हमने पढ़ा है, हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं. 2t dt प्लस इंटीग्रल ऑफ 3 इंटू डी टी डिवाइडेड बाय ये 1 है, इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी टी. ओके, मैं लिमिट्स अभी पुट नहीं कर रहा, मैं फाइनली आई विल पुट द लिमिट्स. ना यहां पे 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा. यू विल हैव इंटीग्रल ऑफ टी इंटू डी टी प्लस यहां पे 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आ जाएगा, 1 बचेगा, इंटीग्रल ऑफ 1 डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ 1 डी टी. ना ये इस फॉर्म में हुआ ना, ये पहला इंटीग्रल आपका x dx हुआ, तो इसका इंटीग्रल आपको पता ही है कैसे निकालता है, x स्क्वायर बाय 2. तो यहां पे ये जो आपका फर्स्ट इंटीग्रल है, दैट फर्स्ट इंटीग्रल वुड बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ t dt. सो दिस विल बी इक्वल टू t स्क्वायर बाय 2. ओके, एंड t वेरीज फ्रॉम 0 to 1. अच्छा, इंटीग्रल ऑफ 1 dx होता है x. So integral of 1 dt would be equal to t. T varies from 0 to 1. वैसे ही डिनोमिनेटर में इंटीग्रल ऑफ 1 dt it is equal to t. It varies from 0 to 1. Okay. So this is equal to 2 t square. So that is t के जगह पे 1 पुट करोगे. So 1 square
by 2 that is 1 by 2 minus 0 square by 2 that is 0 thus 3 t के जगह पे 1 पुट करोगे माइनस t के जगह पे 0 पुट करोगे डिवाइडेड बाय वापस t के जगह पे 1 पुट करोगे माइनस t के जगह पे 0 पुट करोगे सो यू गेट द आंसर एज ये 2 और 2 कट हो जाएगा 1 प्लस 3 4 सो योर एवरेज ये हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं योर एवरेज इज इक्वल टू 4 ठीक है 4 मीटर्स पर सेकेंड सो किसी भी चीज का अगर जो आपको एवरेज निकालना ना किसी भी चीज का एवरेज निकालना हो तो दिस इज व्हाट यू हैव टू यूज ओके आई राइट जनरल formula you can also use this y average is equal to simply y dx divided by integral of dx यहां पे हम लोग ये मान रहे हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x y x पे डिपेंड करता है y अगर जो थीटा पे डिपेंड करता तो आप लिखते y d थीटा डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ d थीटा सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है ठीक है ओके देर इज वन मोर नहीं एक काम करता है वो ना अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करता है वी विल डू वन थिंग वी विल स्टॉप ओवर हियर ओके आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस इसमें इन सम्स की वापस इन क्वेश्चंस की वापस प्रैक्टिस करो एंड प्लीज रीड द फॉर्मूला शीट अगेन एंड अगेन ठीक है चलो बाय एवरीवन